Hello dear students, I am Sandeep Kumar, Economics faculty at Shri Jyoti Education Group Kota. I welcome you all in the economics class. So dear students, in today's class we are going to talk about chapter number 8 of Statistics for Economics, and the name of the chapter is Index Numbers. Basically, the very primary thing strikes in our mind that what is index number? Why have we included this chapter under statistics? So students, let's have a brief introduction of the chapter first of all. Here at the beginning, introduction is given and one example is here. So let's continue with the example. It says that Rabi goes to the market after a long gap. He finds that the prices of most commodities have changed. Some items have become costlier while others have become cheaper. It happens with the pace of the timing. You may have heard about the same thing with your family members, from your neighbors and all, that according to the time duration, the prices and the quantity of the product is going to be changed, and it is getting changed actually. होता है ना बेटा, कभी कभी सुना होगा आपने अपने पेरेंट्स से कि हम जब छोटे थे तब हम इस प्रोडक्ट को इतने रुपए में इतना सारा परचेज करके लाते थे, बट व्हाट अबाउट नाउ वी हैव टू सैक्रिफाइस मोर अमाउंट फॉर गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ द कमोडिटी. So that is what? The changes in the time duration, the changes in the prices of the commodity, and changes in the quantity as we are asking from the market. So all those things are included in the index number. इसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमारे पास कुछ अलग अलग मेथड्स होंगे और किस तरह से वेरिएशन आ रहा है टाइम ड्यूरेशन में. बेसिकली विल बी हैविंग 2 और मोर देन 2 ईयर्स. आपके पास कुछ ऐसा डेटा होगा, मे बी वन विल बी ऑफ 2005, अनदर विल बी ऑफ 2010, और इट कैन बी ऑफ 2008, 2018. और इन दोनों तरह के ईयर्स में आपको कुछ कमोडिटीज गिवन होंगी, कुछ आर्टिकल्स आइटम्स होंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी हैविंग प्राइजेस ऑफ द कमोडिटीज. Suppose you are having A, B, C, D, E commodity. Prices are given in 2008 and in 2018. आपको उन्हें कंपेयर करके कुछ डिफरेंट मेथड्स को यूज में लेते हुए इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना है, एंड यू विल बी टेलिंग द आंसर ऑफ द सेम. तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, दैट व्हाट इज मींट बाय इंडेक्स नंबर. सो कीप द पेन एंड पेंसिल विद यू, स्टार्ट अंडरलाइनिंग द सेम. Here you can see this is what is an index number. क्या होता है index number? An index number is a statistical device for measuring changes in the magnitude of a group of related variables. बेटा एक चीज फोकस कीजिएगा, it is talking about related variables. जो वेरिएबल्स रिलेटेड है, कमोडिटी जो रिलेवेंट है, रिलेटेड है, उनका डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे. ठीक है. इट रिप्रेजेंट्स द जनरल ट्रेंड ऑफ diverging ratio from which it is calculated. It is a measure of the average change in a group of related variables over two different situations. यहाँ जो situation word use में लिया गया बेटा वो क्या है? Different 2 years. आपके पास 2 starts होंगे of the years, such as I told you, one will be of 2008 and the another will be of 2018. तो you will be having 2 situations. आपके पास कुछ यहाँ पे data provided होगा, that is वेरिएबल, रिलेटेड वेरिएबल्स होंगे, और उसमें आपको एक कैलकुलेशन करनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज और परसेंटेज. ओके. द कंपैरिजन मे बी बिटवीन लाइक कैटेगरीज सच एज पर्संस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा. कुछ बताया आपको किस तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं जहां पे हमें कंपैरिजन करना होगा. एंड इंडेक्स नंबर आल्सो मेजर्स चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स सच एज प्राइसेस ऑफ स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ कमोडिटीज, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. जो मैंने आपको कहा था बेटा कि कुछ प्रोडक्ट्स में हमारे पास अवेलेबल होंगे, उन प्रोडक्ट्स में भी हम इजी गोइंग कंपैरिजन को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. कन्वेंशनली इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन आइटम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ 2 periods. द पीरियड with which the comparison is to be made is known as the base period. अंडरलाइन कीजिए बेटा इसको. हमारे पास 2 टाइप्स की ईयर्स होंगे, द वन विल बी बेस ईयर और बेस पीरियड, एंड द अनदर विल बी करंट ईयर और करंट पीरियड. जो मैंने आपको बताया 2018, अगेन आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द सेम. सो जो 2008 है बेटा, हम उसको एज अ बेस कंसिडर करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ 2018. ठीक है. वही चीज आपको बताई गई बेटा जहां पे जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं.
सो 2008 दैट विल बी द बेस ईयर और बेस पीरियड, और जिस पीरियड में या जिस ईयर की हम कैलकुलेशन करें दैट विल बी करंट पीरियड और करंट ईयर हो जाता है वो. द वैल्यू इन द बेस पीरियड इज गिवन द इंडेक्स नंबर 100. If you want to know how much the price has changed in 2005 from the level of 1990. अब देखिए बेटा यहाँ जो कंपैरिजन वो किस किस के बीच में, 1990 एंड 2005 के बीच में कंपैरिजन है. Then 1990 becomes the base. ये क्या हो जाएगा अपने लिए, बेस, क्योंकि करंट पीरियड कौन सा है, रिसेंट पीरियड कौन सा है, 2005. ठीक है, और 1990 दैट विल बी द बेस पीरियड. The index number of any period is proportion with it. Thus, an index number of 250 indicates that the value is 2.5 times that of the base period. ऐसा अज्यूम किया जाएगा कि ये जो चेंजेस आते हैं 250 टाइम्स आ जाते हैं, वो हम कैलकुलेट करेंगे. देन वी विल कम टू नो. इस चीज को अपन जब प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तब आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो पाएगी. नेक्स्ट इट कम्स प्राइस इंडेक्स नंबर्स मेजर एंड परमिट कंपैरिजन ऑफ द प्राइसेस ऑफ सर्टेन गुड्स. ये चीज हम पढ़ चुके बेटा, बता दिया मैंने आपको कि हम क्या करते हैं बेटा कि कुछ सर्टेन कमोडिटीज की प्राइस का कंपैरिजन किया जाएगा. सपोज वीट का एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, तो वीट की प्राइसेस 1990 में क्या थी एंड 2005 में क्या है. सो दैट इज अ कंपैरिजन इटसेल्फ. सपोज 1918 में वीट का प्राइस हुआ करता होगा 10 रुपीज पर केजी, और 2005 में आने के बाद इसका प्राइस हो गया 20 रुपीज पर केजी. तो ये कंपैरिजन है ना, दैट इन दैट ईयर वी यूज्ड टू परचेज अ व्हीट विद इन 10 रुपीज एंड नाउ द प्राइस इज 20 रुपीज. तो यहां से कंपैरिजन करके हम इसका इंडेक्स नंबर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके फाइंड आउट कर सकते हैं. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स मेजर द चेंजेस इन द फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन और एम्प्लॉयमेंट. इन चीजों का भी कंपैरिजन किया जा सकता है. इंडेक्स नंबर में बेसिकली हम जो भी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट से बेटा उन सभी वेरिएबल्स को यहां पे हम इंक्लूड कर सकते हैं. दो प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर मोर वाइडली यूज्ड. A production index is also an important indicator of the level of the output in the economy. प्रोडक्शन की बात की जा रही बेटा एंड रिलेटेड टू प्राइस. हम बेसिकली यहाँ पे प्राइस से रिलेटेड बात करेंगे कि प्राइस इंडेक्स में कितना वेरिएशन आ रहा है, प्राइसेस में कितना वेरिएशन हमें दिख रहा है एक बेस ईयर के साथ में और एक करंट ईयर के साथ में, और उसी चीज का कंपैरिजन हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे बेटा. So here we are going to start the construction of an index number, और उसके जो हमारे कुछ certain methods हैं उन methods को हम डिस्कस करेंगे on whiteboard. So here you can see the very first method for the calculation of index number is simple aggregative method. बेटा अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं in each and every chapter we have gone through any of the sign symbols. अगर हमने मोड की बात की है तो M0, मीन की बात की तो X बार, कोरिलेशन R, रेंज R. तो वैसे ही बेटा जो हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे इसके लिए जो साइन अब हम यूज करेंगे दैट विल बी P01. तो ये जो P01 है रेफर करेगा किस चीज को, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ व्हाट, 0 दैट इज बेस ईयर एंड द 1 विल बी रेफर्ड एज द करंट ईयर. वो चीज मैं भी आगे भी आपको एक्सप्लेन करूंगा. जस्ट यू नीड टू कीप द थिंग इन माइंड दैट P01 इज इक्वल्स टू प्राइस इंडेक्स नंबर का साइन होता है ये. क्वेश्चन बेटा आपको कुछ इस तरह से गिवन होगा, यू विल बी हैविंग दिस टेबल, दीज आर द कमोडिटीज, कमोडिटी ए बी सी एंड डी. क्वेश्चन विल बी देयर, समटाइम्स मेथड इज गिवन कि आपको पर्टिकुलर कौन सा मेथड यूज में लेना है, और अगर ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है सो यू हैव द लिबर्टी, यू हैव टू इंस्पेक्ट द क्वेश्चन कि ये वाला क्वेश्चन आपका किस मेथड से सॉल्व हो सकता है. बेस ईयर प्राइजेस गिवन एंड दिस करंट ईयर प्राइजेस गिवन. ये दोनों चीज अभी मैंने बेटा आपको बुक में मार्क करवा दी है कि बेस ईयर का मतलब क्या है, जिस भी ईयर को हम अपना एज अ बेस लेके चल रहे हैं या फिर जिस ईयर से हम करंट ईयर की प्राइस का कंपैरिजन कर रहे हैं. तो ये जो बेस पीरियड प्राइस है बेटा इसको हम रेफर करेंगे P0 से. ठीक है बेटा, और जो करंट पीरियड प्राइस है इसको हम रेफर करेंगे P1 से. ऑलराइट, व्हाट आई एम सेइंग, जो बेस पीरियड प्राइस है उसको रेफर करेंगे P0 से बेटा, क्योंकि बेस मतलब जो पहले आया और करंट जो अभी चल रहा है. तो 0 पहले आता है या फिर 1, ऑब्वियसली 0. तो P0 क्या हो जाएगा, बेस एंड दिस करंट विल बी P1 हो जाता है. फॉर्मूला बेटा यहां मैंने मेंशन किया है कि इस मेथड से जब हमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है
तो जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज में लेंगे दैट इज P01 इज इक्वल्स टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इनटू 100। इज इट क्लियर बेटा? सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100 हमारा फॉर्मूला है। बहुत सिंपल मैथड है बेटा। सिग्मा P1 का मतलब क्या है? ये जो हमारे पास P1 प्राइजेस गिवन है इन सबका सम टोटल कर देंगे। सो वी विल फाइंड सिग्मा P1 ऑन द अदर हैंड डिवाइडेड बाय सिग्मा P0। और P0 कहां से आएगा? हियर इट इज सिग्मा P0। हमने इसका भी टोटल कर दिया और दोनों ही टोटल्स को जब यहां पे फॉर्मूले में मेंशन करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100 सो वी विल गेट द आंसर ऑफ इंडेक्स नंबर। तो करते हैं बेटा इसका टोटल। बेस पीरियड प्राइस का टोटल 2 + 5 + 4 + 2 7 + 4 11 + 2 13। तो बेस ईयर तो हो गया है 13। करंट पीरियड का देखते हैं 10 + 5 15 + 3 18। ऑलराइट, ऑलवेज आई टेल यू बेटा कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला मेंशन करते हैं उसके डिजिट्स की पहले डिटेल जरूर दें आप। सो सिग्मा P1 इज इक्वल्स टू 18 एंड सिग्मा P0 इज इक्वल्स टू 13। ऑलराइट, मेंशन द वैल्यूज इन फॉर्मूला 18 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बेटा, जब इस इक्वेशन को आप यहां पे सॉल्व करेंगे सो यू विल फाइंड द वैल्यू 138.5 and it is what? P01 and this is the final answer. I repeat the question again. You will be finding such type of digits. आपके पास कमोडिटीज की बनोगी ABCD, बेस पीरियड प्राइस एंड करंट पीरियड प्राइस। क्या है एक तरह का कंपैरिजन कि जो कमोडिटी A है उसकी बेस पीरियड में प्राइस थी ₹2 बट इन करंट पीरियड इट इज नाउ 4। कंपैरिजन है बेटा ये। कमोडिटी C की बात करें सो द प्राइस वाज 4 बट नाउ द प्राइस इज ₹5। इसका भी कंपैरिजन है। तो हमने क्या किया? P0 का टोटल किया एंड P1 का टोटल किया। फॉर्मूला है समेशन P1 अपॉन समेशन P0। दोनों ही वैल्यूज को यहां मेंशन किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 करने से जो वैल्यू आती है दैट इज 138, दैट इज 138.5। ये होगा हमारा इंडेक्स नंबर यूजिंग द वेरी फर्स्ट मेथड दैट इज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द सेकंड मेथड ऑफ योर बुक। Next, the method number 2 is weighted price relative index. Again, you will be having the commodities A, B, C, D. Apart from that, this is P0. P0 refers to price of base period, okay? P1 refers to price of current period. Both the things are given. Another thing, we are having this weight. As we are talking about this weighted price relatives, so we will be having the weights of the commodities that is already given in percentage. अगर नहीं होता परसेंट में तो हम इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे so that it will be easy to calculate. And the next is price relative. ये हमने कैलकुलेट करना है बेटा, या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इनकेस अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली प्राइस रिलेटिव गिवन नहीं होता तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेक इट ए नोट है। दिस इज P1 अपॉन P0 into 100. What it is? P1 अपॉन P0 into 100 ऑन द इंडिविजुअल बेसिस। इससे पहले जो मेथड पढ़ा उसका तो फॉर्मूला ही अपने आप में ये था, लेकिन यहां हम इस चीज को इंडिविजुअली कैलकुलेट करें। यहां सिग्मा नहीं लगाया है मैंने। पहली बात, कैसे कैलकुलेट हुआ देखिए। P1 क्या है? 4। मैं यहां पे आपको कैलकुलेट करवा रहा हूं फर्स्ट पे। 4 अपॉन 2, दिस इज P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 से मैंने 4 को कैंसिल किया 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 200। तो ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा? प्राइस रिलेटिव की। तो आप इसका फॉर्मूला लिख के रखिएगा अपने पास। P1 अपॉन P0 इंटू 100 करने से क्या आता है आपके पास? प्राइस रिलेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट आपको गिवन है बेटा वेट एन परसेंट। अब आपको क्या करना है बेटा? इस प्राइस रिलेटिव को मल्टीप्लाई करना है वेट एन परसेंट से। तो अब यहां पे आप क्या करें? W मल्टीप्लाई बाय P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है भाई, जो आपके पास प्राइस रिलेटिव वो कैसे आया? P1 अपॉन P0 इंटू 100 करने से आया ना, तो इसको मल्टीप्लाई करना है आपको इसके वेट से। करते मल्टीप्लाई बाय दिस इज 200 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल्स टू 8000। नेक्स्ट इज 120 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल्स टू 3600। 125 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू 2500 एंड 150 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 1500। टोटल कर देते बेटा और टोटल आता है सिग्मा W
P1 upon P0 into 100. और इसका अब हम सम टोटल देखते बेटा. It will be 0, again 0, third is 10, 16, 6, 1 carry, 1, 8 plus 1, 9 plus 3, 12 and 2, 14 and 1, 15. Okay, so 15600 is the sum total here. एक टोटल हम यहाँ पे करेंगे वेट का और ऑलरेडी इट इज इन परसेंटेज, सो वी शुड नो इट विल बी 100, क्योंकि जो वैल्यूज हमें परसेंट में गिवन है तो उनका टोटल भी हमेशा 100 होता है. ये आपको मैथमेटिकल रूल पता होगा बेटा. फॉर्मूला क्या है? P01 is equals to sigma W P1 upon P0 into 100 divided by sigma W. ठीक है बेटा, आपने यहाँ पे इसमें वैल्यूज को पुट किया and there you find 15600 into 100. This is what? 15600 divided by 100. Cancel the 0 to 0 is equals to 156 is what? Price index number. So here we have completed math number 2 also, weighted price relative index. This is all about today. Hope so all the things are clear to you. See you all in the next video. Till that time, take care. Bye bye everyone.